So let's go for Dirac notation. This is nothing but what? Dirac notation. उसे हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है? And this is a very abstract notation, and this is given by actually Dirac. Okay, and in general, mainly in quantum mechanics, we use this type of notation. So this is especially quantum mechanics. So yeah, quantum mechanics से related जो subjects हैं, for example atomic, molecular, nuclear physics, stat mech, वहाँ पर आप इसे use कर सकते हो जहाँ भी quantum mechanical approach है. तो what is this Dirac notation? It's a very nice notation and it's a very efficient notation. क्या मतलब है वो समझने का कोशिश करो. So this is a bracket, है ना? So this is basically bracket. C को हटा देते हैं. We have bra and ket. ठीक है? So any function belongs to Hilbert space. अब फंक्शन कैसा होना चाहिए? जो Hilbert space से belongs करे. Means it should follow the closure relation. It should follow the commutation relation. It should follow the associative relation. There must be one definition of scalar product, and the function must be what? Square integrable. ये जैसे मैं कह रहा हूं, a function belongs to Hilbert space, that means you have to tell all this story. तो आपको ये पूरी की पूरी कहानी कहनी होगी, ठीक है? So this is all about. So if any function which belongs to Hilbert space, so let's say psi belongs to Hilbert space, it may be function of x, there is not any problem. It may be function of time, depends on how it is evolving or time with the system. This can be represented, represent करने का तरीका है, this can be represented by a psi ket. This can be represented by a psi ket. ठीक है? Agreed? Now, so we have to also define psi star. इसको define करना पड़ेगा psi star. And psi star is nothing but that will be something like this. So आप क्या कर रहे हो? मैं इसको इसके पीछे की कहानी भी बताता हूँ. And this is notation as bra. ठीक है? Look at what is meaning of that. Meaning is very simple. You have identity and you have closure. है ना? You have identity, you have closure for the function belongs to Hilbert space. इसको लेकर के, so this is the one, है ना? But in general, we have this ket and we have this bra. Okay? So, and in general, the ket, there is a bra associated to ket. In general, but not always, है ना? कब नहीं होगा इसके बारे में बात करेंगे. But in general, when your system is square integrable and you have basically all the properties satisfying with the Hilbert space, अगर वैसा function है, then if you have a ket, then you have corresponding bra. So there is a bra corresponds to ket. There is a bra corresponds to ket in general, but sometime ऐसा नहीं भी हो सकता है. Are you getting my point? That will depends on some different situation, but मैं उसको अभी discuss नहीं कर रहा हूँ. ठीक है? Now, what is this particular notation? This particular notation is basically influenced from the matrices. ये कैसे है? ये matrices से हम influence करते हैं. अगर मैं ket कह रहा हूं, तो basically you are just want to represent a column vector. किसको represent कर रहे हैं? Column vector. ठीक है? There are n number of notation. Depends कर रहा है कि आप किस सिस्टम को सॉल्व कर रहे हो, उसमें कौन सा नोटेशन लेके आ रहे हो, किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप फंक्शन के रूप में चीजों को लाते हो या किट के रूप में लाते हो या फिर और कोई भी नोटेशन यूज करते हो. So in general, there are two notation. One is Schrodinger notation, that is functional notation, and another is Dirac notation, that is what? Abstract one, and which is basically matrix notation.
ठीक है. So if I am saying sum kit, then this value can be, let's say, C1, C2, C3, C4. It can be n dimensional column vector, है ना. This is sum column vector. ठीक है. किट कहने का मतलब ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ऑलवेज एक कॉलम वेक्टर, ताकि आप गलती ना कर सको. ठीक है. एंड देन व्हाट इज योर ब्रा? दिस इज नथिंग बट adjoint of this particular kit with a complex, है ना. Hermitian adjoint आप इसे कहो. So what will happen? रो को, कॉलम को किस में कन्वर्ट कर दोगे? रो में कन्वर्ट कर दोगे, और इसके जो नंबर होंगे, एंड दिस नंबर इज नथिंग बट C1 स्टार, C2 स्टार एंड सो ऑन. ओके. नाउ अगर यहां पर आपने चीजों को देख लिया है, देन what is meaning of scalar product or what is meaning of bracket? So when we are talking about scalar product, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं. सो दिस इज गिवन बाय ब्रैकेट. ओके. सो व्हाट विल हैपन? सपोज वी आर टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन फाई एंड साई. ठीक है. क्या है स्केलर प्रोडक्ट? फाई एंड साई. इसको अगर आप लिखना चाहते हो तो आप क्या लिखते हो? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी फाई स्टार साई dx. सपोज वन डायमेंशनल सिस्टम है तो फाई स्टार साई dx. एंड दिस होल थिंग, ये पूरी की पूरी चीज, ये पूरी की पूरी चीज, एग्रीड? दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फाई ब्रा. स्टार किस में लगा हुआ है? फाई में. सो दैट विल बी ब्रा एंड किट. This whole thing can be represented as bracket, and this is notation of scalar product between phi and psi. ये पूरी जो इंटीग्रेशन करके फाई स्टार साई dx की वैल्यू लाए हो, वो यहां होगा. एंड दैट शुड बी सम नंबर. वो क्या होना चाहिए? दैट शुड बी ऑलवेज अ सम नंबर, है ना. सो दैट शुड बी सम नंबर, मे बी कॉम्प्लेक्स नंबर, देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम. ठीक है. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ अगर मैं फाई और साई का होल डैगर लेता हूं, होल स्टार लेता हूं, एक्चुअली डैगर नहीं, होल स्टार लेता हूं, तो क्या होगा जरा बताओ तो. यू कैन जस्ट गो फॉर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी फाई स्टार साई dx एंड यू विल टेक होल स्टार. ठीक है. एंड दिस थिंग कैन बी रिटन एज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. नाउ यू विल राइट साई स्टार फाई dx. क्लियर है ये? And this can be represented as psi, and this will nothing but the scalar product of psi and phi. This will nothing but the scalar product of psi and phi, and this value can be written as what? Psi and phi. इस वैल्यू को क्या कहेंगे? Psi and phi. Are you getting this thing? Everyone? कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? So this will be your psi and phi. Clear है? So we have lot of properties. Now क्या क्या forbidden है, void है, क्या क्या आप नहीं कर सकते हो, rules है ना. What are void? So what is forbidden? What are forbidden? If you are writing phi and psi, अगर आप ऐसा कुछ लिखते हो, it has not any physical meaning if these belongs to same Hilbert space. ठीक है. If you are writing something that, so it is forbidden or void. इसका कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं है, नो फिजिकल मीनिंग. ऐसा आप नहीं कर सकते.
ठीक है, इट हैज नॉट एनी फिजिकल मीनिंग। वैसे भी आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा, ऐसा कभी कुछ करते हो 1 0 1 0, ऐसा क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। कॉलम इनटू कॉलम इज नॉट देयर। ठीक है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ this phi and psi belongs to different Hilbert space, it's a very interesting. If this phi and psi belongs to different Hilbert space, then you can use direct product. ये क्या है आपका? डायरेक्ट प्रोडक्ट और टेंसोरियल प्रोडक्ट, जो भी आप कहते हो, ये हम देखेंगे क्या है डायरेक्ट प्रोडक्ट। so, ये कब हो सकता है? व्हेन दे बिलोंग्स टू डिफरेंट हिल्बर्ट स्पेस, है ना? देन, और आप ऐसा करते भी हो, डोंट वरी, देखो अभी मैं दिखाता हूं तुम्हें, बड़ा मजेदार चीज है। डिफरेंट किस तरह से आपका पूरा हिल्बर्ट स्पेस काम करता है वो भी आप देख सकते हो। यहाँ तक क्लियर है ना? अभी इसका सारा प्रॉपर्टी करेंगे, बट पहले समझ तो ले क्या क्या करना है। एंड क्वांटम मैकेनिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू एंजॉय मैथमेटिक्स। नाउ, आपने पार्शियल डिफरेंशियल पढ़ा होगा, पढ़ा हुआ है? आप क्या करते हो? सपोज कोई भी फंक्शन है एफ एक्स वाई का, है ना? पार्शियल डिफरेंशियल सॉल्व करते समय क्या कर देते हो? एक्स विल बी फंक्शन ऑफ एक्स, वाई विल बी फंक्शन ऑफ वाई, और आप लिखते हो साई एक्स वाई कैन बी इक्विवेलेंट टू एक्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एज अ फंक्शन ऑफ वाई। एग्रीड, है ना? सो सिमिलरली, सॉरी एफ, यहां पर एफ है, यहाँ एफ लिख रहा है, एफ। ठीक है, so when you will write this particular thing, when your x and y variables are independent, ये वेरिएबल एक दूसरे से कैसे हैं? इंडिपेंडेंट। so you can write this thing when x and y are independent। ठीक है, एग्रीड? अब देखो क्या कहानी बनती है, बड़ी ही प्यारी सी कहानी है। सपोज कोई भी पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है और स्पाइरल मोशन है। कोई भी पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है और उसकी मोशन कैसी है? स्पाइरल मोशन है। एग्रीड? सो हमारा जो इस पूरे सिस्टम का जो वेरिएबल होगा, वो पूरे सिस्टम का वेरिएबल क्या होगा? साई आर थीटा, है ना? व्हाट आर डायनेमिकल वेरिएबल? आर एंड थीटा, वी नो इन द quantum mechanics. So your psi is basically function of r and theta. Psi will be function of dynamical variable. 2 degree of freedom is there. ठीक है, so this psi r theta will make a Hilbert space. एक हिल्बर्ट स्पेस क्रिएट करेगा। ठीक है, जहां पर अगर आप स्क्वायर इंटीग्रेबिलिटी चेक करना चाहते हो, तो आप स्क्वायर इंटीग्रेबिलिटी कैसे चेक करोगे? मॉड साई स्क्वायर, एंड ऑब्वियसली दिस इज फंक्शन ऑफ r and theta, r dr d theta। यही तो होगा। r की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा? 0 टू इंफिनिटी, है ना? और थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? 0 टू पाई, और ये आपकी फिनाइट होनी चाहिए। ओके, नाउ लुक एट हियर। नाउ this psi will create one Hilbert space. Agreed? 0 टू, अरे भाई सर्कल घूमेगा तो क्या होगा? प्लेन में है, कहां फंसे हुए हो? स्फेरिकल पोलर में पहुंच गए। दिस इज मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, फाई का कोई जो फाई है वही थीटा है यहाँ। ठीक है, दिस इज मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, जेड एक्सिस ये है। ओके, सो दिस इज इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब तुम्हारा इलेक्ट्रिक होगा, दिस इज योर जेड एक्सिस। ओके, कुछ ऐसा मोशन हो रहा है, जानबूझ करके मैंने 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम लिया। ठीक है, नाउ what will happen? Hence r and theta are independent variable because they are belongs to generalized coordinate,
R and theta are independent variable because they are belongs to generalized coordinate. What I can write? I can write psi r theta as a function of radial part, as a function of radial part, as well as function of angular part. Psi r theta will be function of radial part and angular part. So now this r will also create one Hilbert space. This R will be also, जो भी possible R होंगे वो भी एक Hilbert space के members होंगे, and this theta will also member of another Hilbert space. Are you getting my point? समझ में आ रहा है नवीन? ये पूरा का सोर्स कहां है? सोर्स देखो इंडिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है? So what will happen? This will also have some scalar product relationship, क्योंकि this is member of Hilbert space, and this will also have some scalar product relationship. ठीक है? तो आप जब इसको वेरिएबल सेपरेबल में लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा? यू हैव mod r dr 0 to infinity into mod theta square d theta 0 to pi. Agreed? And this should be also finite, and because this is also a square integrable function, and this should be also finite because this should be also a square integrable function. It's a wonderful thing. Agreed? It's a wonderful thing. Now you can see here what this belongs to different Hilbert space. This belongs to different Hilbert space. So the combined Hilbert space is nothing but the direct product of radial part as well as angular part. समझ में आ रहा है? So beautiful part ये है, hence it is also square integrable. इधर देख लो, बहुत ध्यान से देख लो. Hence it is also square integrable. You can write the separately normalization condition for this. You can write separately normalization condition for this. And the total wave function is also normalized. Total भी normalize होगा और separate भी normalize होगा, है ना? क्योंकि आप depends on your own choice. You can create a Hilbert space, है ना? लेकिन उसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज होनी ही चाहिए, ठीक है? सो मैं ये पूरी की पूरी कहानी इसलिए कह रहा हूं because if your functions belongs to different Hilbert space, the total function can be represented as a direct product of two functions which belongs to Hilbert space. एक ऐसा हिल्बर्ट जिसका वेरिएबल r एंड थीटा है, उसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर दिए, एक का डिग्री ऑफ फ्रीडम r है और दूसरे का डिग्री ऑफ फ्रीडम थीटा है. आप चाहो तो दोनों को एक साथ भी देख सकते हो क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट मोशन है ना? So why classical mechanics is so important? Because unless until you don't know independency, you cannot create a quantum state. How many possible quantum state can be created will depends on what is your degree of freedom. ठीक है? अगर मुझे स्पाइरल मोशन के लिए बात करनी पड़े तो कभी यहीं पर तुम बता दोगे कितने क्वांटम नंबर मिलेंगे? अगर मैं स्पाइरल मोशन की बात कर रहा हूं तो कितने क्वांटम नंबर मिलेंगे? 2. दो क्वांटम नंबर होगा इसको जस्टिफाई करने के लिए क्योंकि स्पाइरल मोशन है. लेकिन यही अगर सर्कल में मूव करेगा तो सपोज रेडियस फिक्स कर दिया तो 1. क्या हो रहा है? डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूस हो गया तो नंबर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम नंबर भी क्या हो गए? रिड्यूस हो गए, ठीक है? और वो क्वांटम नंबर तो बेसिकली बाउंड्री कंडीशन से ही आएगा, वो हम बाद में देखेंगे कैसे आता है नहीं आता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दिस. Okay, so let's try to again rewrite all the property in term of kit. सारे kit वाले property को भी एक बार हम लिख लेते हैं, ठीक है?
So obviously, if you have one kit, you have another kit. This is equivalent to some new kit, and this is nothing but what? Closure relation. And now the kit plus kit is equal to kit. ऐसा कभी भी नहीं होगा kit plus kit is equal to some bra. अरे भाई column vector plus column vector is equal to column vector. Row vector plus row vector is equal to row vector. So similarly you can write in term of bra also. There is not any problem. ठीक है, मैं kit के term में लिख रहा हूं, आप bra के term में लिखो. By the way, suppose I write one kit, psi kit as C1 phi 1 plus C2 phi 2, some superposition, some closure relations. What will be corresponding bra? Obviously, very good. So corresponding bra is C1 star phi 1 bra, C2 star phi 2 bra. ये हमेशा ध्यान में रखोगे. Agreed? कॉलम वेक्टर के साथ ये नंबर आ जाएगा, तो जैसे ब्रा में ले जाओगे तो ये नंबर का भी क्या होना चाहिए? स्टार होना चाहिए. हर्मिशियन एडजॉइंट की बात कर रहा है. Agreed? Now obviously you can use the commutation relation. आप commutation relation का भी यूज कर सकते हो. So what will be your commutation relation? So you have phi plus psi. You can easily write psi plus phi. This is your commutation. Same time you can have phi plus psi plus chi is equal to phi plus psi plus chi. You can have associative relationship. Okay, you have associative relationship. And obviously you can have zero vector also. Some zero kit you can define. Okay, you can have, this is the vector product, sorry, vector addition rule. And similarly you can go for scalar multiplication rule. So you can have a plus b, some psi is equal to a psi plus b psi. Same thing, same thing. So this is just a repetition. Clear here? And then we have a phi plus psi is equal to what? A phi plus a psi. Just आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो a को दोनों वेक्टर के साथ, है ना? And you have a b psi is equal to b a psi. There is not any problem. Agreed? You have 0 psi is nothing but some zero kit, null vector. Okay. Now, scalar product. We have to define a scalar product. So what is this scalar product? Phi psi must be some finite number. Okay. Phi psi must be some finite number. And what is this? This phi psi is nothing but minus infinity plus infinity phi star x psi x dx. Obviously this इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलेगा? एक नंबर ही मिलेगा. यहां बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है और उस कंफ्यूजन को हम दूर कर रहे हैं. व्हाट इज मॉड साई स्क्वायर? साई स्टार साई. ठीक है, तो क्या मैं इसे ये लिख दूं? से यस या नो?
Yes, this is a function and this is a number. So क्या दोनों बराबर है? This thing is not this one. Clear है ये? This thing is just a function and this thing is number. So this is equal to not this. कभी भी आप ये गलती मत कीजिएगा, मॉड साई स्क्वायर को साई केट और साई ब्रा में लिख दिया, ब्रैकेट साई साई में लिख दिया. आर गेटिंग माय पॉइंट? जब तक आप तो मॉड साई स्क्वायर को दिखाने के लिए आपको ऑलवेज फंक्शन का ही रूप लेना पड़ेगा, यहां पर केट का यूज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट यूज द रोल ऑफ केट. यहां पर आपको किस चीज का यूज करना पड़ेगा? ऑलवेज यू हैव टू यूज द फंक्शन. किसका यूज करना पड़ेगा? फंक्शन का यूज करना पड़ेगा. समझ रहे हो नवीन? ये गलती कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि आगे जाकर के यही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बनेगी. और ये स्केलर प्रोडक्ट, ये तो नंबर है भाई. स्केलर प्रोडक्ट इज जस्ट अ नंबर एंड साई स्टार साई इज जस्ट अ फंक्शन. ओके, यू कैन नॉट इक्वेट दीज टू थिंग. सो ये गलती नहीं करना. सो मॉड साई स्क्वायर इज नॉट ब्रैकेट साई एंड साई. ठीक है, अगर मैं ऐसे भी लिख दूं 5 स्टार साई, क्या ब्रैकेट में लिख दोगे इसे? नहीं. कब लिख सकते हो ब्रैकेट में? when you will do dx and you will integrate, then you can write 5 psi. ये पूरी के जगह पर आप ये लिख रहे हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब तक इंटीग्रेशन दे करके और हो इंटीग्रेट ओवर होल एरिया, इंटीग्रेट ओवर होल पॉसिबल स्पेस, जो भी पॉसिबल स्पेस है उसके लिए जब तक आप इंटीग्रेट नहीं करते हो तब तक आप इसे नहीं लिख सकते हो. ओके, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग. क्लियर है एवरीवन? ओके, नाउ तो यहां पर हमेशा आप प्लीज थोड़ा सा अलर्ट रहोगे कि आप किस तरह से चीजों को देख सकते हो. ठीक है? ओके, नाउ लेट्स गो फॉर ऑर्थोगोनल कंडीशन. है ना? ऑर्थोगोनल कंडीशन. सो इफ फाई एंड साई इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसका मतलब क्या? इंटीग्रेशन फाई स्टार साई इज इक्वल टू 0 इंटू dx इज इक्वल टू 0. ठीक है, नाउ व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन कंडीशन? सपोज phi is equal to 1. This is what? Normalization condition. What is norm of a kit? क्या होगा गरिमा? नॉर्म्स ऑफ किट क्या होगा? सपोज साई का नॉर्म्स लिखना चाह रहे हैं. व्हाट विल बी नॉर्म्स ऑफ साई? क्या होगा? नॉर्म्स ऑफ साई इज बेसिकली साई साई. ठीक है, दिस इज नॉर्म्स ऑफ साई. एग्रीड? तो ये जो नंबर आएगा रूट अंडर, इसी को अगर आप किसी फंक्शन से को डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा? किसी भी फंक्शन को नॉर्म से डिवाइड करते हो तो दैट इट कैन बी क्रिएटेड एज व्हाट? यूनिट वेक्टर. ठीक है, सो दिस इज योर नॉर्म्स ऑफ साई. एग्रीड? ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑर्थोनॉर्मेलिटी. ऑर्थोनॉर्मेलिटी. सपोज वी हैव phi I phi j, कुछ इस तरह का फंक्शन है. ठीक है, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा ij. This value equal to what? Delta ij. What is meaning of that? 1 if I is equal to j, 0 if I is not equal to j. ठीक है? So this is basically orthonormal. Agreed? Orthonormal. Now look at
नेक्स्ट वी विल गो फॉर इंडिपेंडेंसी। किसमें जाएंगे हम लोग? इंडिपेंडेंट वेक्टर के ऊपर जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक क्लियर है सारा? है ना? इंडिपेंडेंसी कर लेते हैं, फिर प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। किसकी बात कर रहे हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। सो सपोज नाउ आई कैन यूज किट एज माय फंक्शन और मैट्रिक्स और स्टेट। उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? किट का यूज कर सकते हैं। व्हेन आई एम यूजिंग इट एज अ किट, दैट मींस दे बिलोंग्स टू व्हाट? हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, वो हिल्बर्ट स्पेस से बिलोंग्स कर रहा है और वो सारी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ओके, ओके। सपोज आई हैव फाई वन वेक्टर। आप वेक्टर भी कर सकते हो, स्टेट भी कर सकते हो, फंक्शन भी कर सकते हो, और देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शन टू यू कहां पर इसे कर सकते, कैसे कर सकते हो। कॉलम वेक्टर भी कर सकते हो। ओके, सपोज आई हैव फाई वन, फाई टू, फाई थ्री, up to phi n number of kit. Suppose we have n number of kit. So if we have this n number of kits, then what will happen? I just want to check whether they are linearly independent or not. Because if we have a linear independent vector, they can create a basis, and any vector can be written in a basis of that particular vector, and they can span all over area. ठीक है, ऑल ओवर स्पेस को वो स्पैन करके दिखा सकता है। ठीक है, जैसे यूक्लिडियन स्पेस में आपने देखा आई जे के मिल जाए तो नंबर चेंज करते रहो, उस पूरे स्पेस को आप वेक्टर के थ्रू दिखा, आप पूरे स्पेस के सारे वेक्टर को डिफाइन कर सकते हो इफ यू आर चेंजिंग द स्केलर नंबर। सो इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट इज आई जे के? रिमेंबर लास्ट क्लास, आई कैन राइट एनी वेक्टर इन टर्म ऑफ, इस तरह से लिख सकते हैं, एनी वेक्टर। The beautiful part is that ijk is what? Independent vector, and the most important part is they are also orthonormal. ये कैसा है? वो orthonormal basis में लिखा। Basis can be orthonormal, cannot be orthonormal, depends on our choice. But in general, in quantum mechanics, in general, we choose orthonormal basis. हमेशा कैसा बेसिस? क्योंकि भाई हमें इसी तरह से काम करने की आदत हो गई है, तो क्यों अपनी आदत को चेंज करें? वी कैन यूज दिस थिंग। सो उसके लिए पहले तो इंडिपेंडेंसी इंपॉर्टेंट है, और फिर उस इंडिपेंडेंसी एटलीस्ट इंडिपेंडेंट हो जाए तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर ऑर्थो नॉर्मल मिल जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है। आर गेटिंग इट और नॉट? एटलीस्ट इंडिपेंडेंट हो जाए तो ठीक है, अगर ऑर्थो नॉर्मल हो जाए तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। एवरीवन इज एग्रीड विद दिस? ओके, गुड। सो वी हैव phi 1, phi 2, phi 3 up to phi n. Agreed? Now, what we have, let's say, so and we have to choose some scalar number, n number of, कितने number of vector है? n number of vector, and we can create a equation that c1 phi 1 plus c2 phi 2 plus c3 phi 3 up to cn phi n is equal to 0. So this is a one particular equation. This is one particular equation. Okay, and now in general, how many possible value of c1, c2, cn you can have? Infinite number of possible value, because number of variable is more than number of equation. So ऐसे केस में क्या हो सकता है? You have always infinite number of possible c1, c2 and c3. ठीक है, but
if phi 1, phi 2, phi 3 up to phi n are linearly independent, if phi 1, phi 2, phi 3 and phi n are linearly independent, then C1 is equal to C2 is equal to C3 is equal to C4 up to Cn. All values should be 0. अगर ये linearly independent होंगे तो all possible value क्या हो जाएगा? 0 होगा. ठीक है? And what you can do? You can write any vector. You can write any vector in a basis of these linearly independent vector. ये मैं बाद में बात करूंगा जब मैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर की बात करूंगा, तो वहां पर और भी आसानी के साथ चीजों की बात करेंगे, जो कि कल की क्लास में हम देखेंगे जब मैट्रिसेस लेकर आएंगे तो. ठीक है? सो दिस विल बी C1, C2, C3 अप टू Cn इज इक्वल टू व्हाट? 0. क्लियर है? ऑल पॉसिबल वैल्यू, इसमें एक भी अगर 0 नहीं होगा देन यू आर इन प्रॉब्लम. ऑल पॉसिबल वैल्यूज. ठीक है? ऑल, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा और वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा जो कि सारे वैल्यू को क्या करेगा? 0 करेगा. व्हाट इज मीनिंग ऑफ linearly independency? Means you cannot write phi 1 in a linear superposition of phi 1 and phi 2, or you cannot write phi 3 as a phi 1 phi 2 linear superposition of phi 1 phi 2 up to phi n. अगर लिख दिया तब तो लीनियर इंडिपेंडेंट कहां से है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं देखता हूं, सपोज x और 5x, तो 5x को तो लिख सकते हो ना x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 5 टाइम. सो दीज आर नॉट लीनियर इंडिपेंडेंट. यू कैन चेक इट. यू कैन चेक इट. कैसे चेक कर सकते हो? कितने वेक्टर हैं? 2 वेक्टर हैं, है ना? सो यू हैव C1 एंड C2, 2 वेक्टर्स, है ना? सो C1 एंड C2, and you can write C1x plus C2 5x is equal to 0. Agreed? और x को अब आप कॉमन ले सकते हो, तो C1 plus C2 5 is equal to 0. x is not equal to 0, है ना? और आप क्या करोगे? राइट हैंड साइड में इक्वेशन को इक्वेट करोगे x to the power 1 से. what is coefficient x to the power 1 into right hand side? 0. कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, है ना? सो आपके पास क्या मिलेगा? C1 plus C2 5 is equal to 0. How many possible solution are there? एक ही पॉसिबल सॉल्यूशन है. इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन इंक्लूडिंग 0 है, लेकिन और दूसरे सॉल्यूशन भी पॉसिबल है. जैसे C1 C2 की वैल्यू 1 लिखो तो C1 की वैल्यू -5, C2 की वैल्यू 2 लिखो तो C1 की वैल्यू -10. ऐसे से कितने नंबर निकाल सकते हो? इनफाइनाइट नंबर. तो ये दोनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है. क्लियर है ये? अब सपोज करो मैं एक ऐसा फंक्शन लेता हूं x और x स्क्वायर, x और x स्क्वायर. ठीक है? इसे चेक करते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं. नाउ यू हैव C1x प्लस C2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब यहां C1 C2 की क्या वैल्यू मिलेगी? 0 0. इसके अलावा और कुछ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप इसको कैसे लिख सकते हो भाई? x की अलग डायमेंशन है, एक्स स्क्वायर एक अलग फंक्शन है. सारे के कोफिशिएंट को आप इंडिपेंडेंटली यहां पर चेक कर सकते हो. सो व्हाट विल बी वैल्यू? ओनली वन वैल्यू कैन बी पॉसिबल फॉर दिस सॉल्यूशन. C1 is equal to 0 and C2 is equal to 0. So x and x square is what? Linearly independent function. ठीक है? They are what? Linearly independent function. ठीक है? अब जैसे कि आप देख सकते हो x and सॉरी x क्या लिख रहा हूं? e to the power minus alpha x square x e to the power minus alpha x square. ये दोनों फंक्शन बड़े मजेदार फंक्शन है. इस पर हम लोग कल की क्लास में और भी ज्यादा चीज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. ठीक है? कल की क्लास सिर्फ प्रॉब्लम्स पर ही हम लोग फोकस करेंगे. ठीक है? सो दीज टू फंक्शन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट? यस, है ना? आप देखोगे C1
e to the power minus alpha x square c2x e to the power minus alpha x square is equal to 0. ओनली दो ही पॉसिबल वैल्यू है जो कि इसको सेटिस्फाई कर सकती है ना, बिकॉज यू हैव टू इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में कोफिशिएंट यूज करोगे, इक्वेट करोगे. यू हैव c1 is equal to 0, you have c2 is equal to 0. So they are linearly independent vector. So if they are linearly independent vector, they can make a basis. They can treat as a basis vector with some alteration, some beautiful, उसको थोड़ा सा सजा धजा करके हम उसको एक बेसिस वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं. सजाने धजाने का मतलब एक यूनिट वेक्टर बना करके, वो सब तो अब देखेंगे स्क्वायर इंटीग्रेबल है या नहीं, बाकी सारा चीज है या नहीं, ये सब देख करके आप यूज कर सकते हो. एग्रीड? So these are the very interesting functional values जो कि सारे के सारे क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, है ना. जैसे आप सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन लेते हो और फिर उससे लीनियर कॉम्बिनेशन कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हो, है ना. ये तो करते हो, C1 C2 को इनिशियल कंडीशन से चेंज करते जाते हो और आप एक नया सॉल्यूशन निकलता जाता है. यही तो करते हैं हम, है ना. वेक्टर के टर्म में आप देख सकते हो. Suppose 1 0 and 0 1, is that this is linearly independent? Yes, these are linearly independent. C1 1 0 plus C2 0 1 is equal to 0. So these are what? Linearly independent. So C1 is equal to 0, C2 is equal to 0. ठीक है? Okay. चलो नेक्स्ट देखते हैं. लेट्स से 1 0 0 0 1 1 0 1 माइनस, क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है? लेट अस चेक. आप चेक कर सकते हो इसे. कैसे चेक करोगे? C1 1 0 0 plus C2 0 1 1 plus C3 0 1 minus 1, that should be 0. ठीक है. सो आप क्या चेक कर सकते हो? C1 is equal to 0, C2 plus C3 is equal to 0, C2 minus C3 is equal to 0. ठीक है. अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो यहां से क्या आएगा? C1 is equal to 0. तो ऐसा कौन सा सम है जिसको ऐड भी करोगे तो 0 आएगा और सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो 0 आएगा? ओनली 0, है कि नहीं? So that value is equal to C2 is equal to 0, C3 is equal to 0. ठीक है. So you can have this type of situation. The beautiful part is that if you have orthogonal vector, they will be linearly independent. अगर आपके पास orthogonal vector है, so every orthogonal vector or every set of orthogonal vector is linearly independent. But vice versa is not correct. मीन्स अगर वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, ऑर्थोगोनल हो. क्लियर है ये? एक एग्जांपल दो. कोई एक वेक्टर जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है लेकिन ऑर्थोगोनल नहीं है. नहीं नहीं, अब वेक्टर के टर्म में बताओ नवीन. 1 1 0 1 है ना. आप अगर देखोगे ये हो गया 1 1, ये हो गया 1 0. नहीं, एग्रीड नॉट? ये दोनों क्या ऑर्थोगोनल है? नहीं, लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट है. दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है. ये भी बेसिस बना सकता है भैया, है कि नहीं? ये भी पूरे स्पेस को, 2 डायमेंशनल स्पेस को भर सकता है. ठीक है. बट हमें उतनी जरूरत नहीं. हमें हमेशा हम ऑर्थोगोनल वाला, चूंकि वो एक्सिस ऐसे देखने की आदत है ना, इसी कारण ऑर्थोगोनल वाले ही लेने की कोशिश करता है.
ठीक है, but this can create also a basis. Are you getting my point? So this can be, these are linearly independent but not orthogonal. ठीक है, you can easily check क्या होगा, C1 11 plus C2 10 is equal to 0. C1 plus C2 is equal to 0. C1 is equal to 0. Then C2 is equal to 0. They are linearly independent. अब दोनों का स्केलर प्रोडक्ट लो तो 1. So they are not orthogonal, but it can create a basis even if it is not orthogonal. ठीक है, so basis के लिए important linearly independency है या फिर orthogonality? Linearly independency. Agreed? लेकिन हम अपने फेवरेबल बेसिस बनाते हैं जहां हमें काम करना आसानी हो, तो कौन बोलेगा कि यार ये ऐसे ऐसे करके एक्सिस लो, दिमाग ही खराब हो जाएगा। ऐसा आप सॉलिड स्टेट में करते हो, प्रिमिटिव वेक्टर्स को इस तरह से चूज करते हो, है ना? ठीक है, सो इन जनरल, सो राइट अ स्टेटमेंट, एवरी orthogonal vector must be linearly independent, but opposite are not true. ठीक है, but opposite are not true. ठीक है, now look at this thing. Suppose we create n number, अब देखो सारा का सारा खेल जो हमारा मेन पर्पस था वो हमने पूरा कर लिया लगभग। Suppose we have a set of orthogonal vectors हमने ढूंढ लिया, तो linearly independent होंगे ही होंगे, और नॉर्मलाइज भी कर लिया because they belongs to what? Hilbert space. So वो स्क्वायर इंटीग्रेबल होगा, हमने नॉर्मलाइज कर लिया. So what is meaning of that? Meaning of that, phi I, phi j is nothing but delta ij. So we find some, किसी भी तरह से कैसे भी करके हमने ये ढूंढ लिया, ठीक है? Then what you can do? You can create a state or you can create a new vector in that space. उसी स्पेस में क्या कर सकते हो, एक वेक्टर क्रिएट कर सकते हो, and that can be written as I ai phi I, और I की वैल्यू कहां से कहां जाएगा, 1 to n. सो ये कितने डायमेंशनल का स्पेस क्रिएट होगा, n डायमेंशनल स्पेस, ठीक है? एंड नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ ai? 0. What is value of ai? The value of ai, I can write this thing as summation over I is equal to 1 to n, and this ai is nothing phi I psi phi I. लिख सकते हैं? नहीं, देख लो ai की वैल्यू क्या होगा, ऐसे कर लेते तुम्हारे लिए, a1 phi 1 प्लस a2 phi 2 एंड सो ऑन. अब स्केलर प्रोडक्ट phi 1 से करते हैं, क्या हो जाएगा, phi 1 psi a1 phi 1 phi 1 plus a2 phi 1 phi 2 and so on. Hence we have chosen the basis vector as a orthogonal vector. इसी कारण ऑर्थोगोनल लेते हैं ताकि आप ये वाला काम कर सको कि जब आप एक का प्रोजेक्शन लेते हो एक डायरेक्शन में तो दूसरे प्रोजेक्शन गायब हो जाते हैं, ठीक है? So this thing can be written, what is phi 1 phi 1? So a1 into 1 and all other thing are 0, so this value is a1. Clear है ये? So this value is a1. So what you have? You have phi 1 psi is equal to a1. So similarly phi I psi is equal to ai. Similarly phi I psi is equal to what? ai. And now you can use, अब देखो इसी के बगल में लिख रहा हूं,
this psi is nothing I, phi I, psi, phi I. So we can create abstract vectors. We can create n number of abstract vector in a basis, in a orthonormal basis of phi i's. और ये नंबर तो आपके ऊपर है डिपेंड कि कहां से आप लेते हो, कितने नंबर लेते हो, है कि नहीं? जैसे इस साई को चेंज करना पड़ेगा, नया साई लिखना पड़ेगा, क्या होगा चेंज? ओनली दिस स्केलर इज गोइंग टू चेंज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर लिया। और देखो कितनी अजीब सी बात है, इसको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझना तो खैर मुश्किल ही है, दिस इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, बट मैथमेटिकल एप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Why mathematical appreciation is important? Because three orthogonal vectors we can visualize up to only 3 dimension. अगर आप विजुलाइजेशन की बात करें तो आप अपने कमरे के अलावा और कुछ नहीं विजुलाइज कर पाओगे 3 orthogonal vectors के। The corner of your room will be the 3 orthogonal vectors. But what we have done, we have created a world where we can have n number of infinite, n number of orthogonal vectors. Can you visualize it? Can you visualize it, Navin? Next to impossible. Human mind visualize नहीं कर सकता है, but mathematics is a beautiful thing that what you can do, you can create this world, isn't it? We can create this world, और हम देख रहे हैं किस तरह से ये पूरी की पूरी कहानी हमारी same analogy is exactly same. There is nothing change into analogy. It's a beautiful story, isn't it? You cannot visualize it, but you can create. And the best part is that when we will use this thing into the postulates of quantum mechanics, it will give the result of real world. This is beautiful part of quantum mechanics. The abstractness is so beautiful, and it is so correlated to the real physical world. Even if it is abstract, even if this psi may be some imaginary function, there is not any problem. But thing is that we created our physics, we created our mathematics so beautifully that it is just associated to the physical world. This is wonderful thing. ठीक है? So इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में पहले हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे and then we will go for operators and matrices. ठीक है? So 5 क्लासेस हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। देखो जैसे ही आपका पोस्टुलेट्स खत्म होगा, फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, सब आप कर लोगे। सिर्फ मुझे आपको सिर्फ डायरेक्शन देना है, बट अप टू दैट पोस्टुलेट्स यू हैव टू फॉलो। ठीक है? सो यू हैव टू फॉलो मी। आपके पास अभी कोई खास काम नहीं है, ओनली जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आप यहां से या बुकलेट से, दोनों में से पढ़ सकते हो। ठीक है? बुकलेट में मैंने एग्जैक्टली सेम टू सेम क्लास वाली चीजें लिखी है। ठीक है? सो प्रॉब्लम्स भी हम लोग करेंगे उसको, है ना? और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले प्रॉब्लम्स करेंगे। इफ टाइम अलाउज देन वी विल गो फॉर बेसिकली ऑपरेटर्स एंड मैट्रिसेस। ठीक है? मैट्रिसेस तो आप लोग कर भी चुके हो, बट आई जस्ट वांट टू डिस्कस दिस थिंग फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। मैं क्या करना चाह रहा हूं उस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। ठीक है? ओके, चलो आज के लिए